then note down. Habeas corpus. Now switch off. Now mute. Time. Which microphone is on? Please mute it. कौन इसमें डिस्कशन कर रहा है? चलिए लेट्स कम. Habeas corpus. It calls upon the person. It calls upon the person. It calls upon the person who has detained. Who has detained another person. Who has detained another person to produce the letter. To produce the letter before the court. Before the court. In order to let the court know. In order to let the court know. In order to let the court know on what ground he has been confined. On what ground he has been confined. He has been confined. He has been confined. And to set him free. And to set him free. If illegal, if no legal justification for the imprisonment. If no legal justification for imprisonment. Imprisonment. अब देखिए पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे की मीनिंग हम एक्सप्लेन कर देते हैं. मान लीजिए किसी व्यक्ति को पकड़ करके कहीं पे बंद कर दिया. अगर मान लो पुलिस पकड़ ले गई, डिटेन कर ली, और मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ ले गई तो आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर या अननोन कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से कहेगा कि इस आदमी को पुलिस ने अननेसेसरी without any legal reason has been detained. So court will immediately listen the matter and it will give the order to the police to bring that person before the court, and court will examine it. Detention is right or detention is wrong. If detention is wrong and it is illegal, then court may freeze that person. कोर्ट तुरंत ऑर्डर देगी इस आदमी को आप यहाँ पे
फ्री करिए। मान लीजिए कोई पेरेंट अपने बच्चों को इस तरह से डिटेन कर दिया। मान लीजिए ज्यादातर आप हरियाणा में देखिए, सम पार्ट ऑफ यूपी एंड एक्सेट्रा, कि अगर लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं तो उनको लोग ले जाते हैं, बुला के ले आते हैं, समझा बुझा करके, और बाद में उनको घर में बंद कर देते हैं। दिस रूल इज आल्सो एप्लीकेबल इन सच टाइप ऑफ द मैटर, कि इफ द पर्सन हैज बीन डिटेन्ड बाय पुलिस और एनी पेरेंट और एनीवन, अगर कोई किसी को जबरदस्ती कहीं ले जाके डिटेन कर देता है, तो any person can move in court. Court will listen it, and court will give the order to concern the police authority to go and bring before the court. यहाँ पे habeas corpus का literal meaning है, what is the meaning of the literal meaning? To have a body. To have a body मतलब आप उसको हमारे सामने लाके, जज के सामने लाके खड़े करो, जज उससे पूछताछ करेगा, अगर उसको कोई मतलब उसको हार्म पहुंचाया गया तो उसके लिए पनिशमेंट देगा, अदरवाइज इट विल गिव द ऑर्डर टू फ्री इट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर writ which is known as the habeas corpus. Now it is clear or any have doubts? Yes, it's clear, sir. क्लियर ना? तो कभी भी गलती से भी ऐसा भी ना करना आप लोग, हम या कोई भी, या मान लो जो लोग पुलिस में भी जा रहे हैं उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम पुलिस में चले गए, अधिकारी बन गए तो हम जो मन पे आएंगे सो करेंगे। नो, आपकी ही नौकरी चली जाएगी, आपके वो उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। जब तक कि रीजन नहीं होगा प्रॉपर विदाउट प्रॉपर रीजन यू कांट पुट एनीवन विद डिटेंशन। ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए आपका नौकर है या कोई सर्वेंट है, उससे कोई गलती हुई तो आपने उसको उठा के घर के अंदर बंद कर दिया, 10 दिन तक खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन में भी दिस इज आल्सो एप्लीकेबल। इफ एनीबडी विल मूव इन द कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देन कोर्ट विल रिटेन दैट मैटर एंड इट विल इमीडिएटली इशू द। इसके लिए कोर्ट ये नहीं कहता है कल हम हियरिंग करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, इमीडिएट हियरिंग होती है। Now, second writs. Second writ is mandamus. Mandamus. और इन रिट्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो 5 रिट्स हम आपको बता रहे हैं, एवरी टाइम क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, mandamus literally means command, means a command. It commands the person to whom it commands the person to whom it commands the person to whom it is addressed to perform. It is addressed to perform some public or quasi, some public or quasi public legal duty, which has been refused to perform, which has been refused to perform, which has been refused to perform
and the performance of which cannot be enforced by any other and performance of which and performance of which and performance of which cannot be enforced cannot be enforced cannot be enforced by any adequate legal remedies by any adequate legal remedies. Have you written? आपने लिख लिया? सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं मिल रहा आपका, काफी वक्त मतलब मेरा ब्लैंक आ रहा है। वो नेटवर्क इशू है आपके एंड पे, बाद में हम उसको शेयर कर देंगे, डोंट वरी, पीडीएफ फाइल विल बी शेयर। सर मैं वापस से हाँ सर मैं वापस से ज्वाइन इन करूं? करो करो, हो सकता है सही हो जाए। आप करिए। नाम क्या है? व्हाट इज नेम सो दैट आई कैन गिव द परमिशन? नोबिन, हेज आपका नोबिन। ठीक है, करिए आप एक बार आउट आगे नोबिन, करिए। आगे नोबिन, ठीक है, ठीक, आगे नोबिन। ओके नो प्रॉब्लम, आप आउट होकर के एक बार फिर से करिए। जी जी हाँ। आपने दिया, रिक्वेस्ट दिया? now you should see it connected. Okay. यामी, यामी, आप हमें सुन पा रहे हो? जी सर। अब आज कनेक्ट हो गए हो ना? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यू आर कनेक्टेड बाय व्हाट? मोबाइल और बाय लैपटॉप और डेस्कटॉप? सर लैपटॉप। हाँ, इसका मतलब मोबाइल इशू है और कोई इशू नहीं है। चलिए जी सर। देख, चलिए लेट्स कम। यहाँ पे क्या है, दो चीजें लिखी हुई हैं, पब्लिक, सम पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी। पब्लिक लीगल ड्यूटी और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी मीन्स, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए और ऑफिस में जाकर के वहां के ऑफिसर्स को आपने बोला कि आप हमारा काम कर दीजिए। मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, और कंसर्न पर्सन, कंसर्न अथॉरिटी जो वहां पे बैठाया गया है वो रिफ्यूज करता है, आई विल नॉट डू इट, आर्बिट्रेरी, विदाउट एनी रीजन। विदाउट रीजन मीन्स if your documents are not complete or something is wrong, then it may be refused. But if arbitrarily it refuses कि नहीं आप जाओ, हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? What can do? You can file the case against that person, and that person must have to do that work, and court will give the order. कोर्ट उसको ऑर्डर देगा, उससे बुलाएगा कोर्ट में और उससे पूछेगा कि आपने ये काम, पब्लिक का काम आपने क्यों नहीं किया। अगर आप पब्लिक पोस्ट पे बैठाए गए हो, यानी इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड यू हैव बीन ऑथराइज्ड टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, देन व्हाई यू हैव रिफ्यूज्ड इट। और उसके बाद उसको ऑर्डर देगा तो आप जाइए इस आदमी का काम करिए, अगर नहीं करेगा तो फिर उसको जो लीगल एक्शन होगा, इट विल स्टार्ट द लीगल एक्शन।
सिमिलरली अगेंस्ट द क्वासी पब्लिक, क्वासी पब्लिक का मतलब जिसके पास कुछ जुडिशियल पावर है और कुछ जुडिशियल पावर नहीं है, जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीसी, these bodies have judicial power and sometimes it don't have judicial power. तो क्वासी पब्लिक का मतलब जिनके पास जुडिशियल है और सब जुडिशियल नहीं है, if they refuse to do the work, then you have right to move in the court by this particular article. अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ऐसा नहीं कि आपको मान लीजिए बिजली का कनेक्शन लेना है और पब्लिक सर्विस कमीशन पहुंच जाइए यूपीपीएससी और वहां बोलिए कि बिजली का कनेक्शन दे दो, तो कनेक्शन देगा वो? Will it provide the connection or not? Not sir. Not, because that is not under the purview of that particular office. बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं कि हम गलत ऑफिस में जाएं और जबरदस्ती उससे करें और झगड़ा करें और कहें कि आप हम करो, हमारे पास ये राइट है. It is not so. But if any person knowingly want to refuse to do your work, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, आपकी बहस हो गई और उसका ऑफिसर कहता है कुछ भी हो जाए हम आपका काम अब नहीं करेंगे, तब आपके पास लीगल राइट है, यू कैन मूव, और वो अधिकारी आके माफी मांगेगा और आपका काम भी करेगा, दोनों करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और अगर वो कहता नहीं करेगा तो बस एक काम उसको बोलिएगा, आप हमें लिख करके अपना स्टैंप लगा के अपना सिग्नेचर करके दे दो कि आई विल नॉट डू दिस पर्टिकुलर वर्क. इफ ही विल डू दिस, तो जान लो कि उसकी नौकरी तो गई, फिर कोई बचाने वाला उसको नहीं है. यही रीजन है कि कभी भी कोई सरकारी आदमी कभी भी कागज पे लिख करके और सिग्नेचर करके जल्दी देने को तैयार नहीं होता है. क्लियर? हाँ, लेकिन अगर उस बंदा सही होगा और आप गलत होंगे तो लिख के दे देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. Microphone of some person is on and it is creating noise. Third writ is known as the prohibition. Prohibition. पहले वाली केस में, अभी मैंडामस में मैंने आपको डिस्कस किया कि कोर्ट विल ऑर्डर टू डू दिस थिंग. जैसे कोई रिफ्यूज काम करने को कर दिया तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप इस काम को करोगे, करना पड़ेगा, ठीक है? प्रोहिबिशन में क्या होता है कि कोर्ट कुछ काम को करने से रोकता है, ठीक है? तो पहले इसको नोट कर लीजिए. दिस रिट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट. दिस रिट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट. हम एससी लिख दे रहे हैं, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए. सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, टू एन inferior court, to an inferior court. Inferior court, to an inferior court, forbidding the latter to continue proceeding therein excess if its jurisdiction
if its jurisdiction jurisdiction का मतलब समझते हैं? Do you know anybody the meaning of jurisdiction? लीगल एरिया। हाँ, लीगल एरिया मतलब जहां पे आपका एरिया आएगा, जैसे जुरिस्डिक्शन ऑफ द डीसी ऑफ ईटानगर, आईसीसी मतलब ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स। अब ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डीसी अभी कौन बना है? हु इज द न्यू डीसी ऑफ द ईटानगर? तालोपोतम। तालोपोतम। कैसा आदमी है? हाउ इज दिस पर्सन? बहुत अच्छा। तालोपोतम सर। हाँ, सर स्ट्रॉन्ग आदमी। ही इज वेरी गुड पर्सन। आप देखिए उन्होंने रोड, हाँ क्या कह रहे हैं सर? ही इज वेरी Hello? गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड और वेरी पोलाइट, हम्बल। ठीक है ना? एक होता है ना एरोगेंसी, है एरोगेंसी भी नहीं है। और आप लोग अगर देखे होंगे तो रोड बनाने में उसको काफी प्रॉब्लम्स भी आई, बट अगेन अच्छा आप लोगों का क्या नाम, बैंक तिनाली का बाईपास ऑन हो गया है नहीं हुआ है अभी? नहीं हुआ है सर अभी तक। अरे अभी उस दिन तो एक पिक्चर आई थी कि ऐसे बंद करके बंद को ऑन हो गया है। आई थिंक दैट वाज ओनली वैसे था, अभी ऑन नहीं हुआ है ना? नहीं सर, Anyhow, वो ऐसे ये बनेगा मंथ के वो अंदर ठीक हो है। जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हमारे कहने का सिंपल सा मतलब है कि हर एक डीसी का, हर एक पुलिस ऑफिसर का, हर एक थाने का एक एरिया होता है। उस एरिया के बाहर जाकर के वो काम नहीं कर सकता है। यानी अगर डीसी ईटानगर का है तो वो जाकर के हरमुती में अगर कोई ऑर्डर पास करेगा तो दैट ऑर्डर इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। समझ गए कि नहीं? क्योंकि दैट इज अंडर स्टेट, फर्स्ट थिंग इट इज आसाम एंड डीएम एंड डीसी ऑफ दैट प्लेस वाज द डिफरेंट। ठीक है ना? इसी तरह जो कोर्ट्स होती हैं, हर एक कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे मान लीजिए यूपिया कोर्ट है। अब यूपिया कोर्ट आपका तवांग का कोई ऑर्डर, मान लीजिए तवांग का कोई आदमी आके यूपिया कोर्ट में केस फाइल करे, घटना घटित हुई है यूपिया में और नहीं, घटना घटित हुई है तवांग में और केस यहाँ फाइल करने आए, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? कोर्ट विल एक्सेप्ट दैट केस और नॉट? नो, because that is beyond of that particular purview of the court. लेकिन अगर उसके बाद भी कोई कोर्ट बाय मिस्टेक किसी की हियरिंग शुरू कर लिया और हियरिंग करने के बाद पता लगा को आर्बिट्रेरी तरीके से हियरिंग कर रहा है, then person can move in the court, in Supreme Court and High Court, and Supreme Court and High Court will prohibit it. उस पे रोक लगा देगा। If this is beyond your jurisdictions, you have not right to listen the matter of this particular case and send that matter to the High Court or the Supreme Court. ठीक है ना? तो प्रोहिबिशन का मतलब यही है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स है, they can stop the proceeding in inferior court if inferior court is trying to listen the matter beyond its jurisdiction. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, क्लियर सर। Is it Yes, sir. clear? ठीक है, नेक्स्ट। सर हाँ बोलिए। ये क्या बोलता है, अगर तवांग में केस है तो अगर यूपिया कोर्ट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं केस को, ऐसे हो पता है?
हाँ, स्पेशल परमिशंस होते हैं, उस स्पेशल परमिशन के अंतर्गत आप नहीं कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट परमिशन देगा और हाई कोर्ट से ऐसा होता है। बहुत बार आप देखेंगे जयललिता के ऊपर केस चल रहा था, शी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु एंड व्हेन द गवर्नमेंट चेंज शी गेव द एप्लीकेशंस एंड देयर केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कर्नाटका बिकॉज शी टोल्ड कि देयर इज चांस ऑफ द पार्शियलिटी इन तमिलनाडु। तो ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन रेयर ऑफ रेयर, नॉर्मली नहीं है कि आप कहीं का केस कहीं पे भी ट्रांसफर कर ले, दैट इज नॉट अनटिल एंड अनलेस यू हैव। मान लीजिए आपका यूपिया केस में है, यूपिया में केस चल रहा है और आपको पता लग रहा है कि आपका जज बिक चुका है, वो आपके खिलाफ ऑर्डर देने वाला है और बहुत सारी चीजें, और यू हैव सम एविडेंसेस, तो आप क्या कहेंगे? आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट को कहेंगे कि भाई हमें इनके कोर्ट में हमें विश्वास नहीं है क्योंकि ऐसी ऐसी एविडेंसेस हमारे पास हैं विच इज प्रूविंग दैट इट विल गिव अगेंस्ट मी। तो कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज करेगा, देखेगा कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है और रियली वो अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। If it will find that really that particular judge or that particular bench can affect, then High Court or Supreme Court has power to either change in another bench or change in another court. Clear? जी आपको आंसर मिल गया ना? नेक्स्ट, शेरेश्वरी, CERTIO, उनकी स्पेलिंग थोड़ा सा टेक्निकल होती है, इसलिए ध्यान से देखिए। वैसे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। शेरेश्वरी, it is issued to quest, it is issued to quest, it is issued to quest order or decision, order or decision order or decision of the court or tribunal of the court as tribunal while prohibition is issued, while prohibition is issued, while provision is issued to prohibit the court to prohibit the court to prohibit the court or tribunal from making court or tribunal for making ultra virus order or decision, ultra virus order or decision। अब यहाँ पे जरा दो तीन चीज देख लीजिए। सर ये अल्ट्रा वीरस VIRES Yes, VIRES, okay. वायरस VIRES। अल्ट्रा वीरस का मतलब है अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ऊपर जाना। पहले देखिए, सेरसरी का लिटरल मीनिंग समझ लीजिए। सेरसरी का मीनिंग है कि
जब भी हायर कोर्ट चाहेगा, लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इट कैन डिमांड फाइल इन इट्स कोर्ट। मान लीजिए कोई मैटर लोअर कोर्ट में चल रहा है या कोई मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो सीधे कहेगा कि आप अपने आप प्रोसीडिंग बंद करिए और जितनी फाइल्स है वो सारी फाइल्स को हमारे कोर्ट में भेज दीजिए। जैसा अभी इन दिनों हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि देयर आर सेवरल हाई कोर्ट्स व्हिच आर पासिंग ऑर्डर क्लियरली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो ऑक्सीजन को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के, रेमडेसिविर को लेकर के इस तरह के ऑर्डर पास कर रहे हैं। लेकिन सेंटर इतनी बदमाश इस समय है, वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि फर्स्ट से इंटरफियर करो अंडर दिस पर्टिकुलर सर्जरी एंड टेक द फाइल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट से बैठ के एक ऑर्डर पास कर देगा कि आपके यहाँ जो भी मैटर चल रहा है उस सारे मैटर को हमारे पास भेज दो। हाई कोर्ट आर बाउंड, उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी। तो ये क्या करेगा, उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मंगा करके उस पर लिपापोती कर देगा। जैसा सरकारें चाहेंगी, सेंटर चाहेगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, उसके हिसाब से जज साहब खेल देंगे और द गुड डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट विल बिकम null and void। All